verses from the last week. Last week हमने पढ़ा कि दक्ष जो कि एक बहुत महायज्ञ का जिन्होंने प्रारंभ किया है, उन्होंने रुद्र को नहीं बुलाया. So सती एक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ खेल रही होती है और वो देखती है कि बहुत सारे ऋषि मुनि इंक्लूडिंग चंद्रमा जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं अपनी पत्नी रोहिणी के साथ. तो बहुत she wanted to know where they are going, so she asked her a good friend Vijaya to go and ask him. So Vijaya जाके चंद्रमा से पूछती हैं कि आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं. चंद्रमा उन्हें बताते हैं, सारा बखान करते हैं कि दक्ष के यहाँ जो एक महायज्ञ का आयोजन हुआ है, हम वहीं जा रहे हैं. एंड ही एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग. विजया वापस आती हैं और सती को बताती हैं सब जो चंद्रमा ने बताया, जो सुनकर सती सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि दक्ष जो कि उनके पिता हैं और उनकी माता अपनी पुत्री को उस इतने बड़े यज्ञ में बुलाना भूल गए. उनको कुछ नहीं समझ में आता है. एंड देन शी वेंट टू रुद्र टू आस्क द सेम थिंग. शी आस्क्स हिम कि दक्ष जो कि उनके पिता हैं, जो इतने बड़े महायज्ञ का जिन्होंने आयोजन किया है, आपका वहां जाने का कोई मन नहीं कर रहा. शिव उन्हें सुनते हैं. एंड देन शी आस्क्स हिम अगेन दैट इफ दे कैन गो देयर. शिव उन्हें बताते हैं कि दक्ष इस समय हाँ वो आपके पिता हैं, लेकिन दक्ष इस समय उनके शत्रु हो चुके हैं. दक्ष उन्हें पसंद नहीं करते, जिसके कारणवश रुद्र ना ही सती को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रण किया गया है. सती सुन के बहुत क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि यज्ञ जो संपन्न करने वाले आप हैं, रुद्र हैं, ऐसे देव को ना बुलाना क्या कारण हो सकता है, ये जानने के लिए मैं जाना चाहती हूँ. तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पिता के वहां जाऊं और उनसे पूछूं कि ऐसा क्या है या ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आपने रुद्र को यहाँ नहीं बुलाया या हमें नहीं बुलाया. शिव उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं कि दक्ष हाँ आपके पिता हैं और आप जा सकते हैं, और उन्हें अनुमति देते हैं वहां जाने की. सती के साथ रुद्र 60,000 शिवगण पूरी यात्रा के साथ सती को दक्ष के यहाँ भेजते हैं. दक्ष को नहीं मालूम, वो आज पता चलेगा, लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट वी रेड इन आवर लास्ट वीक. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर. टुडे वी वर गोना रीड चैप्टर 29. आवर इंग्लिश रीडर इज उर्वशी आंटी एंड आवर हिंदी रीडर इज अश्विनी अंकल. बिफोर आई लीव, प्लीज कम फॉरवर्ड. इफ यू वांट टू रीड शिवपुराण इन हिंदी और इंग्लिश, you can contact Seema Aunty, myself, or Mansi Aunty. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana. Chapter 29. Sati's statement. Brahma said, Sati reached the place where the colorful sacrifice, accompanied by the enthusiasm of devas, asuras, great sages, etc., was in progress. She saw her father's mansion abounding in wondrous things, lustrous and beautiful, as well as the groups of devas and sages. The goddess stopped at the gate and descended from Nandin, the bull. She went all alone inside the place of sacrifice. On seeing Sati, her glorious mother, Asikni, and her sisters received her respectfully. Even after seeing her, Daksha did not show any sign or gesture of love or respect. The others too, deluded by Shiva's Maya, did not receive her out of fear of Daksha. Sati then bowed to her parents, O sage. In her surprise at the cool reception, she gazed at everyone. In that sacrifice, Sati saw the shares allotted to the deities, Vishnu and others, but not to Shiva. She then fell into a great fury. Slighted thus and hence very furious at everyone, she directed her burning fiery look at Daksha and everyone present there. Sati said, "How is it that Shiva, who is highly auspicious and by whom the entire universe of the mobile and the immobile is sanctified, has not been invited by you? What is that sacrifice without Shiva, who is sacrifice himself, the performer of sacrifice, the fee of sacrifice, the adjunct of sacrifice, and the foremost of those who know sacrifice itself? Every rite performed without him will be impure,
but with him or by the mere remembrance of him becomes pure. The articles of offerings, the mantra, the havya and kavya, everything is identical with Shiva. How is it that the sacrifice is being performed without him? Did you disrespect him, considering him on a par with ordinary devas? You have become senseless and mean, though you are my father. Ha! You do not know Shiva, the great Lord, by serving whom Vishnu, Brahma and other devas have attained their position and status. How did Vishnu, Brahma, other devas and the sages happen to be present at your sacrifice without their Lord Shiva? Brahma said, after saying this, Sati addressed Vishnu and others, severally taunting them. Sati said, O Vishnu, don't you know the real nature of Shiva, whom the Vedas speak of as both full or devoid of attributes? Although as the chieftain of King Salva, Shiva had caught hold of your hand and set you aright many a time, that admonition has not entered your brain. Now that you have been evinced a desire to partake of your share in Daksha sacrifice without inviting Lord Shiva. O Brahma, you had 5 faces formerly. When you exhibited your haughtiness against Shiva, he made you 4-faced. It is surprising that you have forgotten it. O Indra, don't you know the valor of the great Lord? Shiva had once ruthlessly reduced your thunderbolt to ashes. O Devas, don't you know the valor of Mahadev? O Atri, O Vasishtha, O sages, what have you all done here? Once the Lord wandered begging for alms in Daruvana. You sages cursed him in the guise of a mendicant. How is it that you have now forgotten what Shiva did on being cursed by you? The entire universe of the mobile and immobile was burnt by his linga. All of you, Vishnu, Brahma, gods, sages, and others have turned foolish, since you have assembled here without Shiva. Shiva of controlled speech, knowable only through self-realization, cannot be understood by anyone with the help of only Vedas, with their ancillary adjuncts and other sacred texts. Brahma said, thus the infuriated Sati, the mother of the universe, spoke many words with her heart in distress. Vishnu, gods and sages kept silent on hearing her words, though their minds were distressed on account of Shiva. But Daksha, on hearing those words of his daughter, looked at Sati cruelly and said thus to her. Daksha said, gentle lady, nothing shall be gained by your speaking so much here. You can go or stay. Why at all did you come? Your husband Shiva is known to the wise as inauspicious. He is not of a noble lineage. He is the king of goblins, ghosts and spirits. He is excluded from Vedic rites. Knowing Shiva to be of indecent dress and features, my dear daughter, I did not invite him to the sacrifice in the presence of gods and sages. Induced by Brahma, I gave you in marriage to the wicked, haughty Shiva, who does not know customs. I have been a sinner and slow-witted. Hence, leave off your anger, calm yourself. Let us see you smile sweetly. Having come all the way to this sacrifice, you can take your own share. Brahma said, the daughter Sati, honored in the 3 worlds, on being addressed thus, became very angry to see her father full of contempt. She mused to herself, how can I return to Shiva? Of course, I am desirous of seeing Shiva, but what reply shall I give when he were to ask me? Sati, the mother of the 3 worlds, heaving sighs of wrath, told her father Daksha, the evil-minded. Sati said, he who reproaches Shiva and he who hears such reproaches, both of them go to hell and stay there as long as the moon and the sun exist. Hence, I shall cast off my body and enter the fire. O Father, of what avail is this life unto me, who am unfortunate enough to hear contemptuous remarks about my Lord? If a powerful person cuts off the tongue of the man who makes such disrespectful remarks about Shiva, both of them will be absolved of sins. If he is not powerful enough, let the sensible man close his ears and quit the place. He shall then be pure, so say the learned persons. Brahma said,
After stating the dictum of virtue thus, she remembered the advice of Shiva and repented her hasty arrival with a grief-stricken heart. Then, inciting the fury of Daksha further, she said to Vishnu and all other devas and sages unhesitatingly. Sati said, "Dear father, hating Shiva now, you are sure to repent later. After experiencing a lot of agony here, you are sure to experience further torture. Excepting you, can there be a person who is adversely inclined and disposed towards Shiva, who is free from inimical feelings, who is the great self, and who does not hate or love anyone in the world? Contempt of the great is infused with rivalry in the bad people, but in regard to those whose tamsika quality is quelled by the dust of the feet of the great, it is auspicious. The syllables she and va, when even uttered, once casually can quell all sins. It is surprising that you are so wicked as to harbor ill feelings against Shiva, who is the Lord of all, whose dictum is untransgressible, and who is the holiest of the holy. You are certainly enemy of Shiva. It is a pity that out of foolishness you hold malice towards Shiva, the benefactor of everyone, whose lotus-like feet are always resorted to by the bees in the form of the minds of lofty-natured persons, who confers all blessings, even that of realizing the self. Have the scholarly persons, Brahma and others, Stanaka and sages, except you, consider Shiva unholy. Shiva, who holds the skull in his hands, resides in the cremation ground in the company of goblins. He wears matted hair, but sages and devas keep on their heads the dust from his feet. Such is the nature of Lord Shiva, the great Lord, the great God. In the Vedas, two sorts of actions are ordained, direct and renunciatory. Scholars differentiate between these two and hold that they cannot be simultaneous and they cannot occur in a single entity. But in Shiva, the great Brahman, these actions do not have any effect. Let us not take to your path of egoism, as displaced in your sacrificial chambers, enjoyed and cast off by the fire. Ours is the manifest path followed by the Avdhutas. O Father, with the crooked mind, you need not be haughty and conceited. Why say more? You are wicked in every respect. You are evil-minded. I have nothing further to do with this body born of you. Fie upon him who is always wicked and who perpetrates actions of unspeakable demerit. Sensible man should shun even the contact with such a man. I am the offspring of your race, as the bull-bannered Lord Shiva has often said. Hence, naturally, my name has come to be Dakshayani. This is distressing to me. This body born of your limbs, I shall cast off as a corpse. It is worthy of contempt. I shall abandon it and gain happiness. O sages and devas, you listen to my words. Your action is improper in every respect. You have become evil-minded. You are deluded. You revel in reproaching Shiva and quarreling with him. Every one of you will get due punishment from Shiva. Brahma said. Having said thus to Daksha and others present in the sacrifice, Sati stopped. After thinking upon her dear Lord, she desisted from her speech. This concludes chapter 29. Thank you. Now I would like to call Ashwini uncle to read in Hindi. Jai Guruji. जय गुरु जी। यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार कर फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गईं जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई
और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गईं। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता असिकनी, वीरिनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की और क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जल्लाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जंच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहां आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूं, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः शुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगीं कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोक की जननी सती रोषा वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दृष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया।
फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहां महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में से गिरे हुए निर्मल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यक्षशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दृष्ट है, उसके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय से दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गईं और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। अध्याय 29 समाप्त। जय गुरु जी।